Hello student, in the last video I taught chapter number 1 in political science book Unity in Diversity. In this chapter I taught the meaning of diversity, need diversity in different fields. Today I will teach need for diversity. Diversity leads to the development of both individual and the society. Every individual is dependent on other to fulfill his or her needs. It is long chain where every individual contribute to the healthy growth of society. Yes, diversity, need for diversity. Yes, every person is need diversity because every person is depend to other to fulfill his needs. We need diversity because it brings is new ideas and experience and people can learn from each other. Diversity India's diversity was considered to be a source of our strength. During the time when India was fighting against the British rule, people from different walk of life united in the struggle for independence. ये जो इंडिया की डाइवर्सिटी है was considered to be a source of our strength. उसकी अपनी शक्ति में है, strength में है. During the time when India was fighting against the British rule, that time जब Indians fight from the British rule to get freedom. So every people from different walks of life united in the struggle for independence. Independence पाने के लिए हर एक people get struggle for independence. Yes. Next, Jawaharlal Nehru, who coined the phrases unity in diversity to describe the country. He says in his book The Discovery of India. ये जवाहरलाल नेहरू who coined the phrases of unity in diversity में उन्होंने अपनी एक फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में लिखा है. He wrote that Indian unity is not something imposed from the outside. जो इंडियन के पीपल की जो यूनिटी है that is not imposed from outside, उनके ऊपर लादी नहीं जाती है, but rather it was something deeper and within its fold. ये उनके अंदर जो ये डाइवर्सिटी है it was something deeper, उनके अंदर से ही आती है. It was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. Yes, जो उनके अंदर डाइवर्सिटी है, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान वाली फीलिंग है वो उनके ऊपर लादी नहीं जाती है. ये उनके अंदर से ही उनके अंदर के आत्मविश्वास, बिलीफ एंड कस्टम्स, रीति रिवाजों में विश्वास वो वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज द इवन एनकरेज. और वो हर एक दूसरे के मज़हब को, एक दूसरे के रिचुअल का रेस्पेक्ट करते हैं. वो किसी को नीचा नहीं दिखाते और हर एक के रिचुअल्स का, हर एक के रिलीजन्स का वो रेस्पेक्ट करते हैं. Thus, we find there is a deep underlying unity which keeps us united as a nation. There is a main current of national life which we call our culture, but sometimes religious and language difference create conflict among people. It should be kept in mind that we are children of one God. All religions teach us compassion, tolerance, and brotherhood of mankind. डीप अंडरलाइन यूनिटी. यस, हमें एक राष्ट्र अगर हमें कीप अस यूनाइटेड एज अ नेशन, अगर अपने नेशन को एकजुट होकर रखना है तो हमें अपनी ये बात दिमाग में रखनी होगी डैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, कि हम सब वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड. और ऑल रिलीजियस टीच, और हमें हर एक धर्म सिखाता है एज कंपेशंस, tolerance and brotherhood of mankind. We are one and we should contribute to welfare and progress of country as a whole. और हमें हर एक को contribute करना चाहिए to the welfare and progress. अपनी country के welfare and progress के लिए हर एक को contribute करना चाहिए.
Diversity between Ladakh and Kerala. Yes, diversity in between Ladakh and Kerala mainly two reasons हैं, two स्टेट्स हैं, बट अब लद्दाख को तो कैपिटल बना दिया है. सो टू स्टेट्स दैट इज सिचुएटेड इन द एक लद्दाख जो है वो नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड है एंड द केरला इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट. लेकिन दोनों अलग अलग डाइवर्सिटी लिए हुए भी फिर भी बीइंग अ सिटीजन ये इंडिया के ही एक पार्ट है. ये दोनों अपने अपने स्टेट्स में अलग अलग डाइवर्सिटी लिए हुए हैं. यस, फाइंड आउट. जैसे लद्दाख है, लद्दाख इट इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन in the eastern part of Kashmir. It is a new union territory of India. Yes, लद्दाख को अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है. Very little agriculture is possible as the region does not receive any rain and is covered with snow all the year round. Yes, जो यहाँ पर बहुत ही कम, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल, बहुत ही कम एग्रीकल्चर यहाँ पर पॉसिबल है. क्यों? बिकॉज दिस रीजन्स नॉट रिसीव एनी रेन. यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है एंड इज़ कवर्ड विद स्नो ऑल द ईयर राउंड्स. और सारे मतलब ऑल द ईयर्स बर्फ़ से ये कवर होता है. दे आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट ग्रो इन द रीजन. बहुत ही कम ट्रीज़ यहाँ पर ग्रो होते हैं इस रीजन में. एंड मेजर क्रॉप्स, और यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य क्रॉप्स होती हैं? डैट इज़ राइस, वीट, बर्ले, पीस, मिल्ट्स एंड मेज. ये मुख्य यहाँ की एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स है, मुख्य यहाँ की क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर ग्रोज की जाती हैं, उगाई जाती हैं. फिरन एंड कसाबा आर द टू पॉपुलर कॉस्ट्यूम्स ऑफ लद्दाख. फिरन और कसाबा यहाँ के पॉपुलर कॉस्ट्यूम्स हैं. लोग इनको पहनते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम cold. Snow. In the past, Ladakh became recognized as the best trade route between Punjab and Central Asia. In the past, प्राचीन समय में लद्दाख को जाना जाता था बेस्ट ट्रेड रूट. बेस्ट ट्रेड रूट जाना जाता था. यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से. फॉर सेंचुरीज इट वॉज ट्रेवर्स्ड बाय कारवान्स carrying textiles, species, raw silk, carpets, dyes, tufts, etc. It was traversed, आते थे यहाँ पर by caravans के थ्रू एंड कैरिंग सामान ले जाते थे. कैरिंग टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रो सिल्क, कारपेट, डाइस एंड टफ्स, बहुत सी सामग्री यहाँ से वो ले जाते थे. गुड्स वर कैरिड ऑन, और सामान किस पर लाद कर ले जाते थे? गुड्स वर कैरिड ऑन पोनीज फ्रॉम अमृतसर टू द सेंट्रल एशिया. अमृतसर से सेंट्रल एशिया तक वो पोनीज मीन्स इज लाइक एज अ टाइप ऑफ अ हॉर्स पर लाद कर वो सामान ले जाते थे. एशियन रूट्स ऑफ याक एंड द कोटा. ऑन दिस लॉन्ग रूट ले वॉज मिडवे स्टॉप. ले जो था इन दोनों के बीच का मिडवे स्टॉप था. सम ऑफ द मोस्ट फेमस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट हेयर. लोसर एंड हेम्स यहाँ के मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स और फेयर्स हैं. लोसर एंड हेम्स चीज. लोसर इज celebrated as their new year. यस, लोसर जो जैसे नए साल पर यहाँ पर न्यू सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पर लोसर इज सेलिब्रेट एज द न्यू ईयर. वाइल हेम्स चीज़ इज़ द बिगेस्ट समर फेस्टिवल. और जो हेम्स चीज़ है वो यहाँ का गर्मियों का समर फेस्टिवल है जो हेल्ड इन लद्दाख, जो लद्दाख में मनाया जाता है. दिस फेस्टिवल सिम्बोलाइज द विक्ट्री ऑफ राइट ओवर रॉन्ग और गुड ओवर इवल. यस, दे फेस्टिवल सिम्बोलाइज, प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. छमी द सेक्रेड मार्क डांस. छमी जो है यहाँ का सेक्रेड मीन्स पवित्र डांस है. Chami, the sacred mark dance, is performed on these occasions by monk dressed on brocade robes and masks. Yes, जो छमी यहाँ का बहुत पवित्र डांस है जिसको यहाँ के monks ड्रेस पहनकर करते हैं एंड फेस पर मास्क लगाकर वो डांस किया जाता है. People from near and far come to see these events. और यहाँ पर बहुत से लोग इस इवेंट्स को देखने के लिए आते हैं. Archery is and the ancient sports of Ladakh. और लद्दाख का जो एंशियंट स्पोर्ट्स है डेट इज आर्चरी.
The largest city in Ladakh is Leh. Leh largest city है और Leh is the capital of Ladakh और Leh ही लद्दाख की capital है. In Leh and its surrounding village archery festival is held during summers. यहाँ पर during summers में archery festivals organize किया जाता है. Islam was introduced here from the west about 100 years ago. Today there is a substantial Muslim populations in Ladakh. The imposing structure shows is a blend of Islam and Tibetan style. Ladakh is also called Little Tibet. We find that both the Muslim and the Buddhist sing and perform Kesar Sagu, the national epic of Tibet. यहाँ पर दो मेजर रिलीजन देखे जा सकते हैं, एक मुस्लिम एंड अनदर वन इज बुद्धिस्ट. दो रिलीजन्स यहाँ पर मोस्टली देखे जा सकते हैं. और यहाँ पर वी फाइंड द बोथ द मुस्लिम एंड द बुद्धिस्ट सिंग एंड द परफॉर्म केसर साग, और दोनों ही यहाँ पर एक इनका जो नेशनल एपिक है उसको एक साथ मिलकर गाते हैं. नेक्स्ट अब आपका आता है दूसरा रीज़न है केरला. It is a coastal state located in the southern part of India and is called the tropical paradise of India. Yes, जो आपका केरला है, it is a coastal state. Yes, ये एक coastal state है जो अरेबियन सी के उस पर बना हुआ है. अरेबियन सी की जो कोस्ट लाइन है उसको ये टच करता है. It is a coastal state located in the southern part of India and is called the tropical paradise of India. It is surrounded by the Arabian Sea on one side and the other side of is the Western Ghats. Yes, एक साइड से अरेबियन साइड्स को टच करता है और अदर साइड से ये वेस्टर्न घाट को टच करता है. The state Kerala derives its name from Malayalam word Kera meaning the coconut palm and Am meaning the place. Coconut forms are parts of their daily diets. Yes, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फार्मिंग वो होती है सबसे ज़्यादा कोकोनट की होती है और वहाँ पर कोकोनट को अपनी डेली डाइट में लिया जाता है. कोकोनट फॉर्म्स आर पार्ट ऑफ द डेली डाइट में उसको यूज़ किया जाता है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ केरला ऑफर्स अ प्लीजिंग ऑफ एटमोसफियर. ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पर, तो इसलिए केरला में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है. प्लीजिंग एटमोसफेयर होता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तरफ तो अरेबियन सी है और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट को उसका बॉर्डर लाइन टच करती है. तो यहाँ का जो एटमोसफेयर है वो बहुत ही प्लीजिंग है, अच्छा है. केरला हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. यस, इसी वजह से वहाँ का जो जब दोनों तरफ से कोस्टल लाइंस को टच करता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड है एंड इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है. द लेक्स कोस्ट canals, inlets and rivers in Kerala are interconnecting waterways that form the backwater in Kerala. Yes, वहाँ पर बहुत सारी canals है, inlets and rivers in Kerala है जो interconnected है, एक दूसरे से connected है through the backwaters के through. कोची द कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला. यस, जो वहाँ का जो कोची है, कोची द कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला है, इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, जिसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है. केरला बेसिकली थ्राइव्स ऑन एग्रीकल्चर. थ्राइव्स मीन्स रिच ऑन एग्रीकल्चर. द मेन क्रॉप्स आर पैडी, कोकोनट, पेपर, कैश्यू, कसारा एंड प्लांटेशन. और वहाँ पर ये क्रॉप्स होते हैं और साथ में वहाँ पर प्लांटेशंस क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं, लाइक रबर, कैश क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, स्पाइसेस, नटमेग एंड कैश्यू नट्स. वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी एग्रीकल्चर की जाती है बिकॉज ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड climate. The state of Kerala has the highest literacy rate. Yes, state of Kerala सबसे ज़्यादा highest literacy rate है. The government of Kerala instituted a state-wide campaign for total literacy in the states. Yes, वहाँ पर जगह जगह पर वाइड कैंपेन लगाई जाती है. वहाँ की जो टोटल लिटरेसी रेट है वो सब स्टेट से सबसे ज़्यादा है. ओनम इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला. केरला का फेस्टिवल ओनम है.
Important festival of Kerala. It is celebrated with joy by the people for 10 days. Yes, ये फेस्टिवल 10 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है. Important features of ओनम. अब कौन कौन से important features हैं जो केरला ओनम के हैं? वर आर वेलम कली, द स्नेक बोट रेस एंड द पोकलम. ये मेन important feature हैं इस फेस्टिवल्स के. फ्लावर मेट्स डिज़ाइन बाय वुमेन. यस, फ्लावर मतलब वुमेन्स के द्वारा फ्लावर्स से सजाया जाता है. जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट अमंग द पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू कम हेयर. यस, जूइश एंड अरब ट्रेडर्स, और यहाँ पर जूइश से और अरब ट्रेडर्स सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे. बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग वेरियस रिलीजन्स सच एज जुडियसियम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म. यस, यहाँ पर बहुत से लोग ट्रेड करने के लिए आए थे, इसलिए यहाँ पर उन सब लोगों का प्रभाव देखा जा सकता है. और यहाँ पर बहुत से रिलीजन्स जैसे सच एज जुडिशियम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म और बुद्धिज़्म, यहाँ पर ये मेन रिलीजन पाए जाते हैं. यस, नेक्स्ट. थ्रू लद्दाख एंड केरला आर क्वाइट डिफरेंस जोग्राफी. यस, अगर आप जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लद्दाख एंड केरला आर क्वाइट डिफरेंट. दोनों बिल्कुल अलग हैं. क्यों? क्योंकि लद्दाख नॉर्थ में सिचुएटेड है एंड केरला इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. बट हिस्टोरिकली, है ना, दे सीम टू हैव सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस. लेकिन उन दोनों में क्या है? सेम कल्चरल इन्फ्लुएंस. वो सेम कल्चर, सेम संस्कृति को मानते हैं, सेम रिलीजन को मानते हैं. दोनों ही जगह हिंदुइज़म और इस्लामिक कल्चर को फॉलो किया जाता है. यस बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. एक्सप्लेनेशन साइड से आपका UT1 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. ओके, बाय बेटा.